तो मुझे पता है कि आप इतना अच्छा समझाते हैं, किसी को भी हिंदी में भी इंग्लिश में भी, लेकिन बस इसको थोड़ा सिंपल वर्ड में, ताकि ये जो यंगर मेंबर्स हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच। प्लीज आई वेलकम मिस्टर राजेंद्र अरोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद मदान साहब। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आकर बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं आदरणीय पीसी जोशी साहब, प्रेसिडेंट AIFTP, प्रेमलता बंसल मैम, चेयरपर्सन ऑफ द प्रोग्राम, एडवोकेट संजय शर्मा जी, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े प्रिय AK श्रीवास्तव साहब। बाकी सारे कवर हो गए। अगर संजय जी का नाम ले लिया तो सब कवर हो गए। मैं समझता हूँ, बट सर औपचारिकता है, मैं चाहता हूँ कि एक बारी वो निभाऊं, और बस मैं 2-4 मिनट ही लूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, इतने सारे इल्यूमिनरीज के साथ, इतने सारे सीनियर्स के साथ। आज का दिन बहुत शुभ और महान दिन है, टीचर्स डे का दिन है, और मेरे इतने सारे टीचर्स जो हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग बदान साहब, इतने सारे लोग, HC भाटिया साहब, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर अभी। मैं अनुज बंसल को बधाई देना चाहता हूँ। 122 लोग हो गए, 120 की लिमिट क्रॉस हो गई आपकी। कांग्रेस। श्रीवास्तव साहब, मेरे आदरणीय, और वसीम जफर जी, मदान साहब, HC भाटिया साहब, राजकुमार बत्रा साहब सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। पुनीत कुमार जी, हमारे सेक्रेटरीज के, अविनाश पोद्दार साहब भी मैं देख पा रहा था, डॉक्टर अविनाश पोद्दार सूरत से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा था, मेरे बड़े परम मित्र हैं। क्या बात, बहुत अच्छा लगा मुझे वो है। नितिका खन्ना मैम आई हुई हैं, सेक्रेटरी STPA, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। क्या है कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बोलना, थोड़ा सा स्पीकर चाहे 5000 बार पहले बोल चुका हो, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि इट हैज बिकम एन ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ दोज जिनको आपने देखकर, सुनकर, पढ़कर सीखा है सब कुछ। तो मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट है, बट स्टिल आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डू जस्टिस टू दी टुडेज टाइम। प्लीज friends, Premlata ma'am was saying that she doesn't know much about GST, but ma'am, I was listening one of your program on enforcement. It was about section 67, and then movement of goods and all, confiscation and everything. And the points which you have actually highlighted in just 5-7 minutes of your talk, initial talk, I'm still all those questions only, ma'am, I must tell you, only all those questions have been haunting, have been actually following all of us professionals and taxpayers in the country. So I have to, it is my proud privilege that today I'm sharing the dice with you, although virtually, but it is a proud privilege, ma'am, to be with you, of course, with all other seniors as well. Friends, if the admin can allow me to share my screen, so that I can start my PPT also. I think it is already there. Thank you, already sir. allowed, sir. Thank you, sir. Thank you. So when we say goods and service tax, so can you actually visualize the emoji which is being used for GST? It is actually trying the GST to fall apart. So I think symbolically much has been already been told that what is going to happen and what is happening at present with this subject. But I must tell you that this not only the chartered accountants, but this platform also, of course, Institute of Chartered Accountants of India has done a wonderful job. I'm not saying because I'm representing the profession and the part of the organization, but yes, when the GST was introduced, everyone would appreciate that much has been done by the institute to educate our members at large. And so as with the AIFTP, North Zone also has been, I am being member to the North Zone, but earlier I have been presenting my paper at Central Zone quite often than not, but North Zone is now doing a wonderful thing. Of course, we all professionals would try and do our best to keep this intact, to ensure that the justice is done to the subject from both sides. I always assume
that not only, of course, as an advocate, I have been taught that, of course, I'm not practicing as such as an advocate, but as a law graduate, I have been taught that whatever your client says, that is the only gospel truth, as if the Lord Rama himself appeared on this earth and said, this is the only truth. But at the same time, as a responsible citizen of the country, I always feel that I should assume my responsibility for that as well, and do help the administrator, like PC Joshi Sahab was in his blessings, he was saying that administrator is going a little above the board and exercising some of those measures which are not necessarily required today. In spite, they should concentrate on more such issues which are more relevant to control the misfeasance which is happening, to control the misdoings, ulterior ventures which are happening in the economy. And I assume my responsibility from both sides, my dear friends, from the taxpayer side as well as from the administrator side. I have been telling them through GSTN and various other platforms also. I was speaking to one of the Bombay platforms, and there were some CBIC members. So I told them one very specific aspect. It was on 1st July 2020, third anniversary of the subject. I don't know whether how many of us are aware of this fact. Yes, must be many of us, that in annual return, there is no process to ensure that there is no revenue leakage. I can prove to the fact, substantiate accordingly, that there is a revenue leakage which is happening through Form 9 inadvertently. There is not a systematic approach. There is no control over the process and the schema of the form through which, if any additional tax liability is reported, then it can be curbed and it can be controlled, that the annual return is filed only after the additional amount of tax which was duly admitted by enhancing the supplies by the taxpayer itself. This is one aspect which I have been keep telling. Of course, many luminaries are listening here on the platform, stalwarts of the profession. They are institutions themselves. So that is why I'm bringing although this is not related to the topic which has been assigned to me, but yes, 5, 7, 10 minutes, I would like to speak on this so that I discharge my responsibility as a responsible citizen. Then one more thing which I feel is worth bringing to the notice is about basically the Section 70 which is happening today. The other time, a few hours back in our office also, we were looking into scrutinizing one summon which has been sent. Many of us, even majority of here, are advocates on the platform. I was understanding Section 70. It is about the inquiry, personal presence, requiring documents, information, and considered to be judicial proceedings. If these are judicial proceedings, then someone must tell them to follow CPC, Code of Civil Procedure, in heart and spirit, so as to actually constitute the same as judicial proceedings. Someone must tell them that merely CGST Act will not be sufficient to complete the proceedings initiated Section 70. I request the administrator, please do not harass the taxpayer, everyone else by initiating this or by sending these summons, because if these are judicial proceedings, then the civil procedure, Code of Civil Procedure, has to be complied in toto. It cannot be complied in pieces and parts. So if I request all my seniors, all my brothers and sisters, my colleagues, wherever and at whatever place it is possible, please bring this fact to the notice of the higher ones so that unnecessary suitable actions can be taken. It is becoming more of a harassment tool than collection of data things. So this is two aspects which I wanted to brought to knowledge of all the listeners here. Then this is the presentation which is covering time of supply,
the meaning and importance, and as my elder brother Advocate Sanjay Sharma sir has already guided me that what all issues are need to be covered. Time of issue of invoices, changes in rate of tax, interstate and intrastate supply. My dear friends, the last week, we covered about the scope of supply. We discussed about section 7 schedule, relating schedules, also schedule 1, 2, 3, all section 8. Even you must have understood the levy part of it also. So one thing is very clear, that the taxable event has happened. Taxable event ho chuki hai. Now, when we see any fiscal statute, especially when we talk about indirect taxes, there are certain verticals which are required to be adhered, on which the entire premise of the statute is located. Levy is part of it. Taxable event is another part of it. Next step, which may come into the sequence, is when the tax is due to be paid. Of course, there are multiple other steps, at what value it is to be paid, at what rate it is to be paid, who is to pay, who is the taxable person. These all are the pillars on which this GST statute is being situated. One of the pillars of the entire levy, because if the time of supply, the supply is done, the taxable event has been done. But if the time of supply is not being defined or being prescribed in the law, then even if the taxable event has already been done, happened, it has already occurred, but when would you pay the tax? That is, then the machinery, if the machinery is not provided in the statute itself, then the law shall stop working. The statute shall stop working. Similarly, that is why, therefore, this time of supply attains a very significant role, because sometimes many people ask me that when to pay. So when the question arises when to pay, it means we have to determine the time of supply. It means when to pay can be deferred also. Is it possible to defer when to pay? Is it possible to defer the time of supply? Of course, the law does not visualize certain situations, but when we read the finer lines, between the lines, then we may find certain situations wherein it can be. But yes, the first and foremost, that what is the meaning and importance of time of supply? I have designed, like Sanjay Sharma sir was saying, that he's got a powerful presentation. I strongly believe, sir, yes, PPT I always make, but it has to be a powerful PowerPoint presentation की जगह मुझे लगता है कि powerful presentation होनी चाहिए, जैसे कि हमेशा हमारे मदान साहब देते हैं, धुआंधार, धमाकेदार. So we'll try that everyone should actually stick to glued to the screen, so that you want to say something, sir. Rajinder bhai, you can speak bit in Hindi also. अच्छा अच्छा सर, मुझे लगा अंग्रेजी में बोलना is a matter of proud. थोड़ा सा अच्छा लगता है अंग्रेजी में बोलना. मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए यंग मेंबर्स के लिए. नहीं, बिल्कुल ठीक है सर. नॉर्मली हमारे साथ एक प्राइड एसोसिएट होता है, जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं तो लगता है कि यहाँ स्पीकर अच्छा होगा, तो इसलिए शायद. बट यस, वो पता लग गया हमको. थैंक यू सर. Yes, the language is to be used which is commonly understood, the vernacular language, and in northern India Hindi is our language. अगर हम बात करें मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस की, तो सबसे जरूरी बात जो है कि टाइम ऑफ सप्लाई कब होता है, ये इस बात को डिटरमाइन करने में मदद करता है हमारी दोस्तों कि हमने टैक्स कब पे करना है. और ये इस बात को भी देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस आर बोथ इंटरलिंक्ड. It could be possible that there is a time of supply and then the time of supply guides you कि आपको इनवॉइस कब इशू करना है. तो हम सेक्शन 12-13 को सेक्शन 31 के साथ पढ़ेंगे. सेक्शन 31 हमें गाइड करता है कि आपको कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में इनवॉइस कब
इशू करना है। आप अगर गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो आपको कब इशू करना है, आप अगर सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं तो आपको कब इशू करना है, अगर आप रिवर्स चार्ज में इनवर्ड सप्लाईज ले रहे हैं, सेक्शन 31 में ही कहा गया है, तो आपको कब इशू करना है। सेक्शन 31 में और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इशू करने की बात की है, आपको रिसीट वाउचर कब इशू करना है, एडवांस वाउचर कब इशू करना है, रिफंड वाउचर कब इशू करना है, बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करना है, बहुत सारी बातें सेक्शन 31 में कही गई हैं। इवन रिवर्स चार्ज के ऊपर भी मैं एक पेंडोरास बॉक्स खोलना चाहूंगा जब मैं उसके ऊपर आऊंगा, तो और इतने सारे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, इतने सारे मैं कहूंगा कि प्रोफेशन के, सब्जेक्ट के इतने महान, इतने कर्मठ और इतने बड़े लोग हैं, तो मैं उनकी आज सानिध्य का जो है भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करूंगा। तो जब हम बात करते हैं मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस जो है वो ये है, मैंने देखी ये जो अगली स्लाइड है मैंने खाली छोड़ी हुई है, कि मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस जो है वो हमें खुद को समझना है एक्चुअली टाइम ऑफ सप्लाई का क्या है। तो सबसे पहले मीनिंग तो सिंपल सा इतना है कि टाइम ऑफ सप्लाई ये डिटरमाइन करता है कि टैक्स कब पे करना है, when tax is to be paid, टैक्स की लायबिलिटी कब अराइज होती है, और जैसे ही लायबिलिटी अराइज हो जाती है, आपका अगर टाइम फॉर एग्जांपल द पेमेंट ऑफ टैक्स अराइजेस टुडे, and if you do not pay the tax in due time as per the prescribed law, then the liability to pay interest thereon also arises. So eventually the time of supply not only determines the time when the tax is required to be paid, but also when the interest is attracted because of the non-payment of tax. Because जैसे ही टाइम ऑफ सप्लाई होगी, आपका टैक्स का ड्यू बन जाएगा, आपका नॉन पेमेंट हो गया अगर आपने पेमेंट नहीं किया। इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हमें अपने वर्किंग कैपिटल फ्लो को, अपनी लायबिलिटी को, अपने ब्याज की एप्लीकेशन को, इन सब को डिटरमाइन करने के लिए हमें टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना जरूरी है। यहां पर मैं थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर आपके साथ जोड़ने जा रहा हूं। जब ब्याज की बात आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के फर्स्ट प्रोवाइजो की एप्लीकेशन डेट और उससे जुड़े हमारे नतीजों के बारे में बात करने के लिए 2-4 मिनट सिर्फ। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 फर्स्ट प्रोवाइजो was inserted with effect from 1st August 2019 by Finance Act number 2 2019, but that provision was put in abeyance and was set to be made applicable from a future date. On 25th August, if I'm not mistaken, there was a notification released by the department and that proviso was made applicable with effect from 1st September 2020. और हम सब ये जानते हैं कि इस प्रोवाइजो का सिचुएशन था कि जो टैक्स है वो ग्रॉस, ब्याज जो है, बेग योर पार्डन, ब्याज जो है वो ग्रॉस पर लगेगा या नेट पर लगेगा दोस्तों। तो बहुत शुरू से हम लोग सारे एडवोकेट्स भी, हम सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इस बात को बोलते आ रहे थे कि भी आपको जो डिडक्शन है ऑन अकाउंट ऑफ इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको देना ही चाहिए, वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन हैदराबाद कमिश्नरेट ने एक इंटरनल सर्कुलर निकाला और बहुत सारी कई जगह हमने पढ़ा, एक इनफैक्ट इकोनॉमिक टाइम्स में भी बहुत बड़ी स्टडी आई थी कि 46,000 करोड़ रुपए का ब्याज का रेवेन्यू जो है उसके लिए नोटिस इशू हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ग्रॉस पे है। फिर मेगा इंजीनियरिंग तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट आया, उन्होंने कहा भाई कानून जो है, ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कानून जो कहता है वो ब्याज को ग्रॉस पे ही कहता है। फिर उसको प्रॉब्लम सारी है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। अब उन्होंने कहा इसको 1 सितंबर से लगा देंगे। उसके बाद अगले दिन 26 अगस्त को उन्होंने एक प्रेस रिलीज निकाल दी और उन्होंने कहा कि भाई आप इसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि भाई ये टेक्निकल लिमिटेशन था हमारा, लेकिन आपसे कोई भी पास्ट रिकवरीज के ऊपर, पुरानी रिकवरीज के ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा, ये हम आपको एश्योर करते हैं। और प्रेस रिलीज का क्या रेलेवेंस है वो मेरे सीनियर एडवोकेट्स फ्रेंड्स बताएंगे यहाँ पर। हालांकि डिपार्टमेंट कई बार खुद से बोल देता है, even honorable high courts ने भी कई बार बोला है कि this is merely a press release that may not necessarily express the intention of the board in every situations, but yes, they have categorically said the past recoveries, and I am expecting sincerely that some sort of circular is expected soon, at least internal circular with respect to the department for the officials not to take any coercive action for recovery of past interest on gross tax. लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता था वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसके लिए मैं बहुत हद तक श्रेय, मैं ज्यादा हद तक श्रेय मेरे बड़े भाई परम मित्र भी मैं उनको कह सकता हूँ, राकेश गर्ग साहब, सीए राकेश गर्ग साहब को दूंगा। हमने बहुत इस पे ग्रॉसली डिस्कस किया और उनका एक आर्टिकल भी छपा और मैंने अपने वीडियो में भी इसके बारे में बोला। वहां पर हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो प्रोवाइजो है, जो नेट टैक्स वाला प्रोवाइजो है, ये किन किन सर्कमस्टांसेस में नहीं लगेगा। When the proviso is not applicable, this is a very important question to address. When the proviso is not applicable, मदान साहब is himself a authority in the subject, तो मैं सर से कहूंगा कि आपका जब भी इस पर भी आप सर प्लीज नोट करें, अपना इनपुट जरूर दीजिएगा, मैं अगर कुछ छूट जाऊं तो। टाइम ऑफ सप्लाई, जैसे ही मैंने आज कोई इनवॉइस इशू किया, जैसे ही मेरा आज टाइम ऑफ सप्लाई हुआ, मुझे सेक्शन 31 कहता है आप गुड्स के केस में जैसे ही आपके गुड्स रिमूव हो गए, where the movement of goods is involved, आपका इनवॉइस का टाइम हो गया, आप आज इनवॉइस कर दे। मैंने आज गुड्स बेचे और इनवॉइस कर दिया, लेकिन ये वाला इनवॉइस जो है, इसकी जो सप्लाई है, इसको मैं रिपोर्ट करना अपने जीएसटीआर 1 में फॉर द मंथ ऑफ सितंबर भूल गया, और मैंने ना 3B में दिखाया ना 1 में दिखाया। और मेरे को मान लीजिए मेरे कंसल्टेंट ने मुझे बताया कि भाई साहब राजेंद्र जी, आप ये वाला इनवॉइस भूल चुके हैं, आपने अपनी 3B में और 1 में नहीं दिखाया, और मुझे बताया जनवरी 2021 में। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये प्रोवाइजो मेरी हेल्प करेगा? क्या मुझे वहां पर, मेरे पास जनवरी 2021 में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, मैं जाकर जनवरी 2021 में 1 लाख रुपए का इनवॉइस था, कन्वीनियंस के लिए 18,000 रुपए टैक्स मान लेता हूं, 1 लाख रुपए का इनवॉइस, 18,000 रुपए का टैक्स जनवरी 2021 के 1 में दिखा दूंगा, पर्टेनिंग टू सितंबर 2020। कोई मुझे रोकता नहीं है, सेक्शन 39 सब सेक्शन 7 भी नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता मुझे, मैं सब कुछ कर सकता, 37/7 आई बेग योर पार्डन, 39 भी, तो मुझे कोई नहीं रोकता, मैं दिखा देता हूं। तो क्या, लेकिन उस जनवरी के महीने में भी मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है दोस्तों। अब मैं क्या करूं कि क्या नेट टैक्स पर ब्याज दूं अगर बनता है तो, अगर मैं डिले करूं, या ये जो 1 लाख रुपए का जिसके ऊपर 18,000 रुपए का टैक्स बनता था, क्या इसके ऊपर पूरा का पूरा आज की डेट से, सितंबर में इनवॉइस था, सितंबर की मंथ 20 अक्टूबर की रिटर्न फाइल करनी थी, नई फाइल की 20 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक जो रिटर्न फाइल सेक्शन 39 और सीजीएसटी में करनी थी, उसी समय टैक्स पे करना था, नई फाइल की, नई रिटर्न फाइल, टैक्स पे किया जनवरी में, फरवरी में पे कर रहा हूं, तो 20 अक्टूबर से 20 फरवरी तक के टैक्स 18,000 रुपए पे पूरा 18% ब्याज दूं, या क्योंकि टैक्स तो मैंने पे ही नहीं करना जनवरी की रिटर्न में, मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है, तो क्या ब्याज दूं ही नहीं, क्या करूं? My reply is the proviso shall not come to your rescue, my dear friends. The interest on 18,000 at the rate of 18%, मैं बड़ी with all my conviction बोलता हूं कि 24% का ब्याज का रेट एप्लीकेबल ही नहीं है, जब तक कि सेक्शन 41-42 जो है वो ऑपरेशनल नहीं होंगे, जब तक कि जीएसटीआर 2 और 3 नहीं आएंगे, तब तक ब्याज 24% कभी लग ही नहीं सकता। 18% ब्याज लगा दिया मैंने, प्रोवाइजो मेरी हेल्प पर नहीं आएंगे। मैंने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत ले लिया, मैंने 1 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत ले लिया, 2 महीने बाद पता लगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत ले लिया है, 2 महीने बाद रिवर्सल करने जा रहा हूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरे पास, उस समय भी पड़ा हुआ है, अवेल कर लिया, लेकिन उस समय भी पड़ा हुआ है, जब 2 महीने बाद रिवर्स करने जा रहा हूं, ब्याज दूंगा या नहीं दूंगा? 100% ब्याज दूंगा, क्योंकि रॉन्ग अमाउंट ऑफ अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट पर प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मैं ये जो आपको बातें बता रहा हूं, यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, मैंने उसको ब्याज के साथ लिंक कर दिया है। आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा सा एक महसूस हुआ होगा कि हाँ, ब्याज के साथ कैसे टीओएस लिंक हो सकता है और टीओएस का क्या इंपॉर्टेंस है, दैट इज आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग होम दैट फैक्ट। चलिए अब एक एक करके माइन्यूटली फटाफट, हमारे पास समय जो है अब लगभग 50-60 मिनट ही बाकी हैं, हम फटाफट जो है इसके ऊपर हम एक एक करके माइन्यूटली डिस्कस करते हैं दोस्तों। सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करता है, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करता है। क्योंकि सब्जेक्ट मैटर में गुड्स और सर्विसेज हैं हमारे इस कानून में, तो गुड्स की टीओएस अलग निकालेंगे और सर्विसेज की टीओएस अलग निकालेंगे। आप कहोगे जी वहां पर एक बोथ शब्द भी प्रयोग होता है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जब चार्जिंग सेक्शन या हम टैक्सेबल इवेंट के सेक्शन में जाते हैं, सेक्शन 7 में जाते हैं या सेक्शन 9 में जाते हैं। To my understanding, both is irrelevant here. Whenever both shall be there,
it shall be classified as a works contract as per section 2 subsection 119, and then it shall be classified as per schedule 2 as services. So both is not at all there. So only goods or services. I just wanted to clarify one additional point. So where goods are removed, then what is the TOS? If goods are not removed, then what is the TOS? How is it possible goods are not removed and supply is made? Is it possible? Whenever there is a supply, movement of removal of goods has to be there, because earlier law also in excise, there used to be the taxable event of removal of goods only. But is it possible that supply is made, but there are no removal of goods? There is no removal of goods. Is it possible? Answer is yes, my dear friends. It is very much possible that there are removal of goods, or there is a supply without having goods being removed from the place of supply of supplier. Place of supplier. So the law has intentionally differentiated between where the goods are removed or where the goods are not removed, made available to the recipient. The movement as per Sale of Goods Act also, where the movement the goods are being ascertained by the supplier on the instance of the recipient, we shall consider the goods sold, and all the risk and rewards belonging to the goods shall be transferred to the recipient. So similarly, the same although बहुत ज़्यादा difference नजर नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ मेकर्स ने इसको इंटेंशनली इसको रखा है. मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता चाहूंगा, जहां जहां मुझे जो समझ में है, मेरे को जो पता है मैं बताता जाऊंगा. तो जब गुड्स रिमूव्ड है, आपका ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 आता है. जहां गुड्स की रिमूवल होगी, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल है जी. मान लीजिए आज 5 सितंबर है, आज गुड्स रिमूव हो रहे हैं, तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 है आज की डेट. इफ द गुड्स आर रिमूव्ड, और डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, whichever is earlier. आपने ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, अगर इनवॉइस पहले कर दिया, रिमूवल बाद में है, देन डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट. अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं. मान लीजिए आज मेरे को एक पार्टी एक्स ने अप्रोच किया. आई डील इन रेफ्रिजरेटर्स. मुझे एक पार्टी एक्स ने अप्रोच किया और उसने कहा, राजेंद्र जी मैं आपसे 100 रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहता हूं एक पर्टिकुलर ब्रांड के. मैंने कहा ठीक है सर, मेरे गोडाउन में ये पड़े हुए हैं. उसने मुझसे वो 100 रेफ्रिजरेटर का इनवॉइस बनवा लिया आज, फॉर एग्जांपल 5 सितंबर. पेमेंट आई 6 को और 7 को मैंने रिमूव किया. हालांकि मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिए हुए हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा. पेमेंट आई कल और रिमूव किए परसों, क्योंकि बिना पेमेंट के मैं रिमूव नहीं करता. इनवॉइस आज ही बना दिए, बिना पेमेंट के मैं माल नहीं देता. आई वर्क ऑन एडवांस ओनली. इन माय प्रोफेशन आल्सो आई वर्क ऑन एडवांस ओनली. आई डोंट वर्क ऑन क्रेडिट्स. सो दैट वे आज मैंने क्या किया, इनवॉइस बना दिया 5 तारीख को, कल पेमेंट हुई, परसों रिमूवल हुआ. whichever is earlier, date of invoice is the earlier, date of supply is 5th of September, and the time when the tax is due to be paid, of course it is to be paid within a particular tax period. So you don't have to say that if the time of supply has come today, 5th supply, if I pay on 20th October, then the interest shall be levied. ऐसा नहीं है. आपको एक टैक्स पीरियड का, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, कुछ जैसे मदान साहब ने मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई हमारे कुछ बिगिनर दोस्त भी हैं, तो उनके लिए आप बिल्कुल क्लियरली थोड़ा बेसिक्स पे भी ध्यान देकर चलिएगा. तो टाइम ऑफ सप्लाई जो है, अगर आज हुआ है तो आपको एक टैक्स पीरियड का टाइम ऑफ सप्लाई इकट्ठा करना है. उस टैक्स पीरियड का आपने रिटर्न 3V फाइल करना है अगले महीने की 20 तारीख तक. और सेक्शन 39 आपको कहता है कि आपकी लायबिलिटी बांधता है कि आप अपने जब रिटर्न फाइल करेंगे उसी के साथ अपना टैक्स भी पे करेंगे दोस्तों आप. तो आपको एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का इकट्ठा कंसोलिडेट करके उस पीरियड में जो भी टाइम ऑफ सप्लाई हुई है आप, और टैक्स पीरियड जो है इनवेरिएबली वो सबका मंथली है, किसी का भी क्वार्टरली नहीं है इस सब्जेक्ट में. अर्लियर इन वैट लॉज, स्पेशली इन दिल्ली, कुछ लोगों का मंथली होता था, कुछ लोगों का क्वार्टरली होता था, डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर. यहाँ पर frequency of GSTR1 is changed depending upon the aggregate turnover, but not the payment of tax. Everyone is tax payable
for everyone on monthly basis. So when goods are removed, whichever is earlier. Then in case of where goods are not removed, it is possible that goods are not removed at all. So the removal is being done away from the statute part. Date of invoice, due date of invoice. When the due date of invoice shall be the date when goods made available. Whether it is removed or not. Today, that fellow came to me for buying 100 refrigerators. मैंने उसके लिए 100 रेफ्रिजरेटर्स मेड अवेलेबल कर दिए, भैया किसी को बेचूंगा नहीं. कब तक? जैसे हम होटल्स में बुकिंग करवाते हैं कि जी टेंटेटिव बुकिंग कर दीजिए हमारी. टेंटेटिव बुकिंग भाई साहब 4 दिन के लिए है. अगर 4 दिन तक इफ यू डोंट रिवर्ट बैक, then we will make it open, and anybody else comes, then we'll offer them. So similarly, I made goods available. The moment I made goods available, in that situation, the due date of invoice comes, or date of invoice, it could be previous proceeding. I made goods available today, but tomorrow, but he got the invoice done today only, or he made the payment yesterday. So the day when the payment was received, or the due date of payment invoice, or the date of invoice, whatever comes earlier, that देखिए आपको बड़ा क्लियरली यहां से समझ में आ रहा होगा कि the law has a very clear intention. The time of supply shall be when the contract is crystallized. Payment आ गया, invoice हुआ या नहीं हुआ, contract is crystallized. Offer, agreement, consideration, valid agreement as per contract act also. Offer, acceptance. अब कई बारी हम लोग सोचते हैं कि हमारी जो जीएसटी में किसी भी फिस्कल स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारा जो ओरिजिनल इवेंट है, द बिगिनिंग, द जेनेसिस ऑफ ए ट्रांजैक्शन कम्स फ्रॉम इनवॉइस. आई एम सॉरी, इट इज नॉट लाइक दैट. द जेनेसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन comes from the agreement entered between the prospective buyer and the prospective seller, and invoice is merely recording of that agreement which has already been happened between the two contracting parties, and the invoice is created to make it unambiguous, to make it clear as per Contract Act 1872. Any verbal agreement is equally valid in the eye of the law. Only that is demonstration of the fact that there was an agreement is a little difficult in the court of law. That's it. Rest everything is very much clear. So the invoice is made. Invoice का जो जन्म है वो agreement से है. और मैं आपको फिर कहूंगा दोस्तों, मेरे लिए किसी भी ट्रांजैक्शन की शुरुआत उस एग्रीमेंट से है, चाहे वो वर्बल है या नॉन वर्बल है या रिटर्न है, उस एग्रीमेंट से जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में होती है. किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स स्टैच्यू में, स्पेशली अब तो हम जब जीएसटी की बात करते हैं, अर्स्टवाइल सर्विस टैक्स वीएटी में भी हम लोगों के लिए सबसे बड़ी गाइडिंग फोर्स जो होती थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चार्टर ऑफ द ट्रांजैक्शन जो होता था, वो उसका एग्रीमेंट होता था कि एग्रीमेंट क्या है आपका, उसी से हम नेचर डिटरमाइन करेंगे. आपको भी उस पर बहुत ध्यान देना है. तो दिस इज इनवॉइस के ऊपर मैंने आपको बताया कि इनवॉइस, हाउ इंपॉर्टेंट इनवॉइस इज. और कई बार हम लोग सोचते हैं कि इनवॉइस अगर लूजली भी डिजाइन हो गया, रूल 36 एंड रूल 46, दीज टू रूल्स आर इंपॉर्टेंट. इनवॉइस की डेफिनेशन जब हम सीजीएसटी एक्ट में पढ़ते हैं तो वो कहता है इनवॉइस वो है जो सेक्शन 31 में लिखा है. इनवॉइस वो है जो सेक्शन 31 में लिखा है इनवॉइस होगा. सेक्शन 31 में लिखा है कि इनवॉइस वो होता है जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द सप्लायर, रेसिपिएंट, टैक्स वैल्यू, ये सब प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, और सच अदर पर्टिकुलर्स एज में भी प्रिस्क्राइब्ड. ये सेक्शन 31 की ओपनिंग सबसेक्शन 1 में लिखा है. और एज में भी प्रिस्क्राइब्ड जब भी लिखा हो कानून में, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, आपको रूल्स में रेफर करना है. और रूल इसका रेलेवेंट है रूल 46, जिसमें 17 आइटम्स लिखी हैं इनवॉइस के ऊपर दोस्तों, कि ये 17 आइटमें इनवॉइस के ऊपर होंगी तब वैलिड इनवॉइस होगा. लेकिन उसमें एक प्रोवाइजो एडेड है उस रूल 46 में, आई एम सॉरी रूल 36 में एक प्रोवाइजो एडेड है जो कि डॉक्यूमेंट्स की बात करता है. रूल 36 में जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि सिर्फ अगर आपकी वैल्यू टैक्स
सप्लायर और रेसिपिएंट का GSTIN भी लिखा जाएगा तो भी वो वैलिड इनवॉइस मान लिया जाएगा क्रेडिट के लिए। हम रूल 36 पढ़ते हैं सेक्शन 16 के लिए। सेक्शन 16 है एलिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट, और सेक्शन 16(1) में कहा जाता है कि उन सब डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको क्रेडिट मिलेगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और वो डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड है रूल 36 में। मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, लेकिन ये 3-4 सेक्शंस का आपस में आपको समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन है, आपस में जो मेल है, ये समझना जरूरी है। और इनवॉइस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपने इनवॉइस रूल 46 के हिसाब से नहीं बनाया तो आपको पेनल्टी है। आपने जिसको रूल 46 के हिसाब से इनवॉइस नहीं बनाया, वो जो रेसिपिएंट है उसको क्रेडिट लेने में समस्या है, क्योंकि 16(2) कहता है, 16(1) कहता है कि रूल 36 के अनुसार इनवॉइस में सारी बातें होनी चाहिए। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों के लिए इनवॉइस बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इनफैक्ट अभी पीछे हम लोगों ने इस बात पर भी डिस्कशन किया कि अर्स्टवाइल रिजीम में इनवॉइस, अब कई ऐसे सी स्टैट जजमेंट्स हैं जहां पर जो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ना एड्रेस गलत लिखा है रेसिपिएंट का, तो कई जजमेंट में जहां पर ऑनरेबल ट्राइब्यूनल ने कहा कि भाई देखिए ये जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं इसकी वजह से क्रेडिट डिनाई नहीं होना चाहिए। और कई जजमेंट ऐसे भी हैं जहां पर उन्होंने कहा कि भाई अगर प्रोसीजर कोई डिसाइडेड है, प्रिस्क्राइब्ड है विद इन द लॉ एंड द सैंडविच क्रेडिट रूल्स में था उस समय, तो वो भी कंप्लाई होना चाहिए, तब जाकर आपको क्रेडिट की एलिजिबिलिटी पूरी होती है। तो डिवाइडेड जजमेंट्स है, लेकिन मेरा आपसे विनती ये है कि आप अपने कागज को पूरा प्रॉपर तैयार कीजिए। आप इन सेक्शंस को, इन रूल्स को जरा देख लीजिए, बहुत डिटेल में आप पढ़िए, और इनको आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या बेसिक क्वालिफिकेशंस इसमें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डेट्स मैंने कोलेट की हैं आपके लिए। पहली सिचुएशन, व्हेन गुड्स आर नॉट रिमूव्ड, व्हेन गुड्स आर रिमूव्ड, फटाफट पढ़ रहा हूं। डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, टाइम ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ रिमूवल 1 अगस्त, इनवॉइस 31 जुलाई, पेमेंट 2 अगस्त। सो अर्लियर इज 31 जुलाई। डेट ऑफ रिमूवल 1 अगस्त, इनवॉइस 2 अगस्त, पेमेंट 2 अगस्त, अर्लियर इज 1 अगस्त। चौथा इंस्टांस, डेट ऑफ रिमूवल 30 जुलाई, रिमूव आपने पहले कर दिया, आप कहेंगे गुड्स रिमूव कर दें और जो है इनवॉइस ना काटें, विद इन आप गुड्स की रिमूवल जो है वो आप डीसी पर कर सकते हैं, डिलीवरी चालान पर कर सकते हैं। आपने आपका टाइम ऑफ सप्लाई देखिए पहले ही होगा। इनवॉइस आपने 1 अगस्त को रेज किया, पेमेंट आपकी 25 जुलाई को आ गई, तो आपका इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई जो है विच एवर इज अर्लियर वो आपका बनेगा 30 जुलाई। तो उस केस में अगर गुड्स रिमूव्ड नहीं है, अगला सिचुएशन गुड्स जहां रिमूव्ड नहीं है, where the goods are not removed, made available only, in that situation date on which made available, date of invoice, date of payment, time of supply. Similar situation I have enumerated for you when goods are made available, तो मैंने आपको बता दिया whichever is earlier। मैं आपको इसमें अभी थोड़ा सा I'm skipping it this particular slide. In case of reverse charge my dear friends, when the time of supply is there, अब मैं थोड़ा सा ना आपको रिवर्स चार्ज में टीयूएस बताने से पहले इनवॉइसिंग बताना चाहता हूं कि टैक्स इनवॉइस कैसे जनरेट होगा। अच्छा, इनवॉइस है या टैक्स इनवॉइस है? द वर्ड यूज इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस, सो these are used interchangeably, but largely in majority of occasions in the law the word is used tax invoice, so it is tax invoice. Earlier in VAT laws, दिल्ली वैट में हमारे पास एक रिटेल इनवॉइस होता था, एक टैक्स इनवॉइस होता था। अभी जब मैं इंट्रास्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाई के बारे में बात करूंगा, मुझसे एक सवाल आया, मुझसे सवाल पूछा किसी ने कि राजेंद्र जी ये बताइए कि हम किसी ट्रांजैक्शन को B2B कब बनाएंगे और B2C कब बनाएंगे। मैंने कहा देखो जी, पहली बात तो कानून इस बात को विजुलाइज ही नहीं करता, रूल्स विजुलाइज करते हैं। वहां पर मुझे एक ही तरह का इनवॉइस बनाना है और वो है टैक्स इनवॉइस। अब B2B कब बनाएंगे GSTR 1 की रिपोर्टिंग में और B2C कब बनाएंगे, बड़ा ही कॉमन सवाल है। आप ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ बड़ा ही कॉमन सवाल है, B2B कब बनाए, B2C कब बनाए। इशू क्या कर रहे हो? टैक्स इनवॉइस। अगर B2B होगा तो क्या कोई आप दूसरा इनवॉइस करेंगे, B2C होगा तो कोई दूसरा इनवॉइस करेंगे? नहीं। टाइप ऑफ इनवॉइस, फॉर्मेट ऑफ इनवॉइस, नेचर ऑफ सप्लाई, एवरीथिंग शैल रिमेन द सेम. If it is intrastate in case of B2B, B2C, intrastate. If it is intrastate in case of B2B, B2C, intrastate.
But when to treat in GSTR1, statement of outward supply, section 37, a particular supply as B2B or B2C? My dear friends, for me, the guiding force which can be deduced is if the recipient is supplying his GSTIN number to me, his GSTIN to me, and asking me to mention his GSTIN in the invoice, I would consider it as B2B. If he is not supplying me any GSTIN, he is not furnishing me any GSTIN of his, then I would consider it as B2C. Next question arises कि सर मैं B2B कैसे दे दूं? अब मुझे पता है ये तो ब्लॉक्ड क्रेडिट है. आप होटल पे आए, रेस्टोरेंट पे आए, मान लीजिए आप बैंक्वेट में 5 स्टार होटल का, एक्चुअली क्वेरी जो थी वो किसी 5 स्टार होटल की थी मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ तो क्रेडिट मिलता ही नहीं है जो रेसिपिएंट है. मैंने कहा आपको इससे क्या लेना, लेट द रेसिपिएंट डिसाइड कि उसको क्रेडिट मिलता है या नहीं मिलता है. इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटरमाइन दैट व्हाट इनवर्ड सप्लाईज आर एलिजिबल फॉर द क्रेडिट. इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. So my humble take would be here that to determine B2B and B2C shall be merely on the basis of furnishing of GSTIN by the recipient to you. If he is furnishing GSTIN to you, then consider it as B2B, otherwise B2C. अब मैं इंटर और इंटर पर जब बात करूंगा थोड़ा सा और डिटेल में उसके बारे में बात करूंगा. एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, वो भी बताऊंगा और उसके बारे में बात करेंगे. तो अब रिवर्स चार्ज के ऊपर, इनवॉइसिंग के ऊपर बात करते हैं. सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F. अब आमतौर पर एक मिसगिविंग है इन द सर्कल, इन द सर्कल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन द सब्जेक्ट, that in case of reverse charge, the recipient has to do the self invoicing. I'm sorry friends, it is not the same. Let's be very clear about it. If you ask me, let's be very clear. In case, let me now phrase the entire structuring of the invoicing in case of reverse charge. I am not going into 9(3) and 9(4). We are just talking about notification 4/17 CTR in case of goods, जहां पर goods के केस में reverse charge 9(3) में कंपलसरी है, और and नोटिफिकेशन 13/17 CTR जहां पर सर्विसेज के केस में रेसिपिएंट के लिए रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना कंपलसरी है. आई एम इवन नॉट डिस्कसिंग अबाउट द नोटिफिकेशन 3/19 CTR विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2019 इन केस ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. मैं वो भी डिस्कस नहीं कर रहा, वो वैसे सब कुछ उसी में आ जाएगा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता. मैं उसको टच बेस करते हुए I feel that is a hot subject, so I'll burn my fingers. So I always try not to touch more 3/19 CTR. वो जो रियल एस्टेट वाला पूरा का पूरा एक टैक्स स्ट्रक्चर हमें दे दिया 11/17 में ऐड करके 11/17 CTR में. तो I always feel that is a very hot subject. I might be burning my fingers touching it. So मैं touch करता भी हूँ तो I always take my fingers away, bring my fingers away so that the burn mark should not come into my fingers. So that you might have got what I'm trying to bring home symbolically with that. So in case of reverse charge, when we say reverse charge की invoicing कब होनी है, पहला तो ये सिचुएशन ये है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है. अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, उस केस में आपने सिर्फ उसी केस में आपने सेल्फ इनवॉइसिंग करनी है उस रिवर्स चार्ज की इनवर्ड सप्लाईज की. अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है, it is his responsibility to raise the tax invoice for the purpose of outward supplies which are taxable under reverse charge by him. You don't have to raise the self invoice in case of supplies received from where the suppliers are registered. ठीक है जी, आपने कुछ नहीं करना. चलिए, तो ये रिवर्स चार्ज में सिर्फ आपको उनकी केस में रिवर्स चार्ज में सेल्फ इनवॉइसिंग करनी है जो आपके अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स. अब वो करनी कब है? 4 डेटें, 4 इवेंट्स, 4 आपके लिए लैंडमार्क्स हैं.
date of receipt of goods, 30 days from the date of invoice, date of payment, date of debit in bank account, जो भी पहले है आपको उस डेट पर, गुड्स के केस की बात हो रही है, सर्विसेज विल डिस्कस सेपरेटली, उस डेट पर आपने टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा आपका, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज by the recipient itself, the month in which TOS of RCM goods occurs, the liability to pay arises in the same tax period, and the eligibility to take credit of the tax paid for that tax period also arises immediately. Let me restate it in a different manner. जिस भी महीने में आप रिवर्स चार्ज का टैक्स पे करते हैं दोस्तों, उसी महीने की 3B में आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल ले सकते हैं. दिस इज माय हम्बल व्यू, backed by various other judicial precedents which I can present. So मैंने आपको बता दिया, I am not going in कि वो जो illustration है आपकी convenience के लिए मैं PPT I will be sharing, और जो भी मुझे भी जिसको मुझसे भी PPT चाहिए वो मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वहां लिखा है, मुझसे भी मांग सकते हैं. अदरवाइज मैं श्रीवास्तव सर, मदान साहब, हमारे पुनीत जी, सबके साथ ये शेयर कर दूंगा. इसका स्पेशल मेंशन था हमारे संजय शर्मा सर की ओपनिंग स्पीच में, ओपनिंग रिमार्क्स में. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स, क्या क्या सिनेरियोज हैं और उसका TOS कब बनेगा. फ्रेंकली इस TOS को डिस्कस करने के लिए मुझे कम से कम 45 मिनट चाहिए होते हैं जब मैं वाउचर्स की बात करता हूं, एटलीस्ट 30 मिनट्स, बट टाइम इज नॉट परमिटिंग दैट वे. तो हम लोग ब्रीफली इनके बारे में बात करेंगे. अगर कोई और समय मिलेगा कभी तो हम वाउचर्स के ऊपर कैटेगोरिकली, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल सिचुएशंस हैं, बट स्टिल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा. वेयर सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, वाउचर्स वो हैं जहां पर आप, दिस इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट विच इज रिप्रेजेंटिंग अ फ्यूचर सप्लाई टू बी मेड ऑफ गुड्स, which enables the bearer of the voucher to buy a particular good either at a concessional price or for free, represented, the value represented by the voucher. For example, I went to Shoppers Stop, bought some voucher of Shoppers Stop and gifted to my friend on his birthday. Now that voucher, which may be read as that this would enable the bearer, the person who is carrying the voucher, to buy goods from Shoppers Stop of any outlet in the country worth of 5,000 rupees. I might have paid maybe 4,500 rupees or 4,700. Some discount may be there, or I might have bought on face value. When the Shoppers Stop sold me the voucher worth of 5,000, if the supply is identifiable, that what can be sold represented by that voucher, in that case the TOS shall happen there and then. For example, if the voucher which I bought for my friend to be gifted to him categorically says that you can buy 4 shirts and 4 trousers to the maximum value of 5,000 rupees, then the supply which is going to happen within the time allotted, the duration within which vouchers are in validity, then the supply has already taken place the day the vouchers are sold, because the supply is identifiable in terms of goods. What goods? Because the next question would arise
you have identified the time of supply, but at what rate you would be taxing the supply. Taxable event is there, time of supply is there, then the rate of tax is to be identified. The classification of goods according to the harmonized system of nomenclature is of utmost importance to determine the rate of tax attracted to that particular supply made. If the supply is identifiable at the time of issue of voucher, the time of supply shall be the date of issue of voucher, my dear friends. When the supply is not identifiable, then the date of redemption of the voucher shall be the time of supply. Because it could be goods, it could be services, which goods, which services, the rate, type, HSN cannot be determined in advance. That is why when the type of supply is not identifiable, then the time of supply of those vouchers shall be the date when finally those vouchers are basically redeemed. So I've tried my level best to make it simpler. थोड़ा सा आपके कोई confusion, कोई doubt होंगे तो हम उसमें address कर सकते हैं query sessions में if the organizers would permit. Where the time of supply cannot be determined in accordance with the above provisions, the TOS will be the date on which periodical return is to be filed, or the date on which CGST, SGST is paid, as the case may be. It could be possible that the redemption is something which is very remote or something like that. Could be the residuary situation which is being envisaged by the law. In that case, you yourself paid the tax, or you consider a particular supply of vouchers in a particular tax period, then the tax period, the periodic return shall be the date of supply of those vouchers. You yourself have admitted while considering a particular supply of vouchers in a particular tax period return, then in that case the TOS shall be automatically deemed to have happened because you have yourself considered the supply of those vouchers in a particular tax period. Otherwise, or if you have already paid the tax on that considering the supply, time of supply, then the TOS, the date on which CGST or SDST or whatever the tax case may be, is already paid in that case. Now we will moving towards section 13, TOS of services. देखिए गुड्स के केस में दोस्तों रिमूवल टेंजिबल्स हैं, नजर आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है. सर्विसेज क्योंकि इंटेंजिबल्स हैं, मैं तो बड़ा ही इसकी वैल्यूएशन पर मैं बहुत एप्रीहेंसिव रहता हूं. आई एम वेरी firm on the situation that valuation section 15 tomorrow is going to be one of the most litigated section in this subject when the departmental audits and other enforcement would start. Premlata ma'am, if you are listening me, one more fact I would like to bring to your knowledge, ma'am, that I have seen some instances, this is something a little deviated from the topic. I have seen at various instances where section 70 summons are being used to enforce or visit the premises of the taxpayers also. That's the kind of harassment which is being done. So I'm not going in detail with that. Ma'am, just wanted your kind attention for that matter, ma'am. And others, members also. S.C. Bhatia Saab, if listening, sir, please do something for this. Sanjay Sharma ji, you are already the member of the grievance redressal committee of Delhi government. So please bring this matter to the knowledge of the administrators, please, sir. Aruna ji, yes, sir. 15 minutes more. Okay, sir. Sorry, sir. Thank you. So time of supply in case of services. Now, scenarios and in the TOS. Invoice issued within prescribed time, that is 30 days from the date of when the supply is made. So the TOS shall be date of supply or date of receipt of payment. Date of supply, due date of supply is within 30 days from the date when the supply is made. If the invoice is raised
within the time of when that invoice was required to be made, then the date of invoice or date of receipt of payment, whichever is earlier. If the invoice is not made within 30 days, then the date of provision of service or date of payment of receipt, whichever is earlier. अगर आपने इनवॉइस कर दिया जिस दिन आपका सेक्शन 31 के अनुसार इनवॉइस होना था, वो है 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. अगर आपने इनवॉइस कर दिया, मतलब आपके पास प्रोविजन ऑफ सर्विस से इनवॉइस तक के 30 दिन है. आप अगर कुछ भी अपना टाइम ऑफ सप्लाई थोड़ा सा भी मैनेज करना चाहते हैं, तो आप सर्विसेज के केस में आप 30 दिन के बीच में आप इनवॉइस कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने इनवॉइस नहीं किया और आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस हो चुका है, तो मैं प्रोविजन ऑफ सर्विस को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लूंगा, बशर्ते कि अगर आपको पेमेंट नहीं आई है तो. और अगर पेमेंट आ गई है तो मैं टाइम ऑफ सप्लाई जो है, प्रोविजन ऑफ सर्विस हुई है या नहीं हुई है, मैं आपकी पेमेंट को ही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान लूंगा. हालांकि 1 जुलाई 2017 से सेक्शन 12 और 13 में दोनों में एडवांस के ऊपर, गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस में एडवांस के ऊपर टीओएस बन जाता था. अगर आप गुड्स के केस में भी एडवांस पकड़ लेते थे गुड्स सप्लाई के लिए, तो भी आपका टाइम ऑफ सप्लाई उसी डेट पे हो जाता था. लेकिन उसके बाद उन्होंने, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, समवेयर इन नवंबर द नोटिफिकेशन केम वेयर इन सेक्शन 12 वाज अमेंडेड, एंड इन दैट सिचुएशन जो एडवांस इन केस ऑफ गुड्स है वो दैट इज बीइंग रिमूव्ड, एंड सिर्फ सर्विसेज के केस में अगर आपको एडवांस पहले मिल गया तो आपका टीओएस हो जाएगा. So this is मैंने illustrations हैं. I think I'm a little clear about it, so I don't need to read the illustrations for the repetition of the provisions. Reverse charge in case of services, मैंने जैसे कहा 13/17 में 16 सर्विसेज हैं जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है. 60 days from the date of invoice or date of payment or date of debit in bank account. आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है तो उसने इनवॉइस किया होगा. अगर अनरजिस्टर्ड है तो आपको सेल्फ इनवॉइस सेक्शन 31(3)(f) में करना है, और उसकी इनवॉइसिंग की डेट आपको मैं बता रहा हूं. आपको सेल्फ इनवॉइस करना है. आपने इनवॉइस किया उसके 60 दिन के बाद, या डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट, जो भी अर्लियर है, जो भी पहले हो जाता है, उस दिन को आपको अपनी सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज में टीओएस होगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. अगर इन तीनों डेट को आपको आइडेंटिफाई ना कि इनवॉइस हुआ, ना पेमेंट हुई, ना डेबिट हुआ, जिस दिन अगर आप ऊपर किसी भी सिचुएशन में टीओएस डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो section 8 explanation 1 of IGST also, then I will be putting more light on associated. Then time of supply in case of vouchers, similar situation in case of goods, and in case of services, same provisions are being prescribed. This tax has been quite frequent and must have been, because it was a new law, my dear friends. So the rate of tax was changed quite frequently in past 36 months. Last change was happened in December 2019. There are 3 events which are required to be identified in order to determine. The question here is that in case of event of change in rate of tax, which rate of tax shall be applicable for the supply? Whether the old rate which was before the change, or new rate which is after the change. In order to determine this, my dear friends, we have to identify for every supply 3 events. 3 events. These are 3 events: goods supplied or services provided, date of issue of invoice, I'm repeating,
गुड्स सप्लाइड और सर्विसेज प्रोवाइडेड, आपको या तो ये डेट, आप पहली डेट ये पकड़नी है, दूसरी डेट पकड़नी है इनवॉइस की, तीसरी डेट पकड़नी है रिसीट ऑफ पेमेंट की, कि उस सप्लाई के लिए आपको पेमेंट आई या नहीं आई, आई तो कब आई। इन तीनों डेटों में से, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत क्लियरली बहुत इजीली बता रहा हूं इस स्लाइड को, ये सेक्शन 14 एक ही स्लाइड में कवर हो जाएगा यहाँ पर। ये इन तीनों डेटों में से जो भी दो डेट्स कोइंसाइड होंगी टुगेदर, प्री चेंज एरा में या पोस्ट चेंज एरा में, प्री चेंज ऑफ रेट एरा में या पोस्ट चेंज ऑफ रेट एरा में, इन तीन डेट्स में से कोई भी दो डेट्स कोइंसाइड होंगी, इकट्ठी फॉल करेंगी प्री चेंज एरा में या पोस्ट रेट चेंज एरा में, वही रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स आर सप्लाइड बिफोर द रेट in change of the change in rate of tax, date of issue of invoice is after the change in rate of tax, date of receipt is also after the change in rate of tax, then my dear friends, new rate, because two events are falling in post change in rate of tax era, then the new rate of post change rate of tax shall be applicable to this particular supply. I'm repeating, then I'll not be discussing all these instances with you. Last, second wala, before goods change in rate of tax, goods were supplied. Before change in rate of tax, invoice was issued. But payment was made after change in rate of tax. Then two events are falling before the change in rate of tax. Then, my dear friends, it would be the old rate which would be applicable. I hope it is amply clear. Wherever two events out of these three shall fall, the rate of that particular era shall be applicable to that particular supply, my dear friends. Now, I'm not, this is a same thing repetition. Now, time of issue of invoice I've already all discussed with you, my dear friends. This is in the repetition only. All the dates I have already shared with you. Then the last topic which has been allotted to me is about the interstate supply and intrastate supply. My dear friends, again, next 2-3 minutes I would be dedicating to the importance of determining interstate supply and intrastate supply. First of all, the importance, then we shall talk about the meaning. My dear friends, इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई में सिचुएशन ये है कि रेट ऑफ टैक्स बदल जाता है। अगर कोई सप्लाई इंटर होगी तो आईजीएसटी चार्ज होगा, इंट्रा होगी तो सीजीएसटी और लोकल एसजीएसटी या यूटीजीएसटी चार्ज होगा। अब आप, कॉमन सवाल है हम सबका, और ये सवाल देखिए, मैं मानता हूं कि जितने भी बेसिक सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वही इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम कई बारी हेसिटेट कर जाते हैं कॉमनली, क्या ये तो बड़ा बेसिक सवाल है, ये पूछने की क्या जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई नेवर हेसिटेट माई सेल्फ टू आस्क इवन माई सेल्फ द बेसिक क्वेश्चंस इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बेसिक सवाल है कि भाई आई हो या सी और एस हो, टैक्स तो टैक्स ही है। मुझे इस बात की समस्या क्यों होनी चाहिए कि मुझे आई सही बनाना है, सी एस सही बनाना है। आपने सेपरेट प्रोविजन डाल दिया सेक्शन 77 में कि भैया आई पे कर दिया, सीएस करना था, आई का रिफंड मांगो, सीएस दो। वो ठीक है, आपने बहुत मेहरबानी की हम पर, ये एहसान किया कि ब्याज नहीं मांग लिया। आपने सेक्शन 77 और सेक्शन 19 ऑफ आईजीएसटी में साफ साफ कहा भाई गलत पे कर दिया, कोई बात नहीं, ब्याज मत दो, लेकिन रिफंड मांगने जाओ। आज की डेट में रिफंड, मैं समझता हूं कि वैट रिजीम में भी, सर्विस टैक्स रिजीम में भी बहुत आसान था, और सितंबर 2019 से पहले भी बहुत आसान था रिफंड लेना, मैं समझता हूं। आज अगर आप रिफंड लेने जाते हैं तो डेफिशिएंसी मेमो एक ऐसा टूल है, मैं वही सोचता हूं कि हर सेगमेंट ऑफ द लॉ में एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ टूल्स डिवाइस कर लिए हैं, नॉट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बट डिक्रीज ऑफ डूइंग बिजनेस।
कुछ टूल्स डिवाइस कर लिए कि आपको धंधा नहीं करने देना है, रिफंड नहीं देना है, आपको नहीं, वो डेफिशिएंसी मेमो दे देंगे फॉर एनी अदर रीजन। डेफिशिएंसी मेमो अभी मेरे को मिला है इन केस ऑफ रिफंड ऑफ सर्विसेज कि आप इसको जाकर आइस गेट से लीजिए। मैं हैरान हूं, आइस गेट वालों को सर्विसेज के रिफंड का क्या पता लगेगा? मैं तो कभी गया ही नहीं, मेरा तो ये आईसी ही नहीं है सर्विसेज के लिए। वो कहते हैं जाकर आइस गेट वालों से लीजिए, मतलब उन्होंने रिजेक्ट करना है फॉर एनी अदर गुड रीजन। एनीवेज, सो एक जजमेंट इसके ऊपर साजी एस हुसैन का ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट का 2018 में आया। हालांकि मैं समझता हूं कि वो जजमेंट बहुत अर्ली नेसेंट स्टेज पे था, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में हो सकता है उस समय एक्चुअली नहीं पता है, और डेवलपमेंट्स भी बहुत बाद में बहुत सारी हुई हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई रिफंड के केस में मैंने गलत टैक्स पे किया है तो आप आपस में एडजस्ट क्यों नहीं कर लेते। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि भाई सही बात है, आपका एक कॉमन टैक्स प्लेटफॉर्म है, क्लियरिंग सिस्टम है आपके पास इंटरनल, आप भी तो आईजीएसटी जो कलेक्ट होता है देते हो ना स्टेट्स को उसका शेयर, सीजीए एसजीएसटी जो कलेक्ट होता है उसको स्टेट को शेयर देते हो ना, तो आप यहाँ पर इंटरनली क्लियरिंग क्यों नहीं कर सकते। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत ही लॉजिकल बात कही है और बिल्कुल सही भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका इंटरनल क्लियरिंग सिस्टम भी देखिए बाहर से जो इतना कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है वो अंदर कितना कॉम्प्लेक्स होगा आप सोच के देखिए। बाहर ही इतना कॉम्प्लेक्स है, हमें ही समझ नहीं आ रहा प्रैक्टिशनर्स को, सब हमारे टैक्स पेयर्स को, तो अंदर से कितना कॉम्प्लेक्स उनका क्लियरिंग सिस्टम होगा। एनीवेज, सो इसके लिए इन्होंने एक सर्कुलर भी निकाला। इन्होंने क्या कहा कि भाई देखिए ऐसा है, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं करते तो आपको हर सप्लाई की रिपोर्टिंग पर 5,000 रुपए की पेनल्टी है। अब क्या है, अब ये क्यों ऐसा चाहते हैं कि आप इंटर स्टेट सप्लाई और स्पेशली B2C इंटर स्टेट सप्लाई, जैसे ही कोई B2C होती है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम है, जैसे ही B2C होती है इसका मतलब सप्लाई चेन से, डिस्ट्रीब्यूशन चेन से वो पर्टिकुलर सप्लाई जो है वो वैनिश हो गई, एंड यूजर ने उन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर लिया, क्योंकि B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर है। इसका मतलब उसका जो क्रेडिट है वो आगे फर्दर नहीं जाना, इसका मतलब उसका क्रेडिट उस स्टेट को रेस्ट कर जाना है जिस स्टेट में वो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हुए हैं। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर कलेक्शन मैकेनिज्म। उस कलेक्शन मैकेनिज्म को इंश्योर करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है, और हम पर 5,000 रुपए की पेनल्टी भी लगाई कि भैया आपने किसी भी B2C इंटर स्टेट को अगर प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं किया। अब बताइए आप, मैं बदान साहब, मैं मत माफ करना थोड़ा सा, क्योंकि सब्जेक्ट इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। 1 जुलाई 2020 को एक GSTN ने डाटा रिलीज किया जिसमें उन्होंने ये बताया, मैं आप सब हमारे जितने भी हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनका ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहता हूँ वापस से, वो जरूर देखा होगा उन्होंने। 1 जुलाई 2020 को GSTN ने डाटा रिलीज किया, जो कि एक बड़ा भाई है सरकार का। मैं तो कहता हूँ कि ये बड़ी रानी का पुत्र है, और जो लॉ है वो छोटी रानी का पुत्र है। जो बड़ी रानी का पुत्र होता है वो जो कह देता है वही भगवान का कहा सत्य होता है। इसके लिए चाहे छोटी रानी के पुत्र को उसको जस्टिफाई करने के लिए सर्कुलर निकालना पड़ जाए कि भाई जो बड़ी रानी के पुत्र ने कहा है वही कानून है, कानून को मत ध्यान देना, जो इसने कह दिया वो कह दिया, इसने जो कहा वो कर दिया, काफी है। अब आप देखिए, GSTN कहता है कि हमारे 1 करोड़ 23 लाख टैक्स पेयर्स हैं। कैन यू इमेजिन, जिसमें से 93% इंडिविजुअल्स हैं। हमारे पास 6% लोग 70% टैक्स रेवेन्यू देते हैं, ये GSTN का डाटा है। 6% लोग 70% टैक्स रेवेन्यू देते हैं, और मैं कहता हूं आपको जरूरत क्या है बाकी 94% लोगों की तरफ देखने की? आप इन्हीं 6% लोगों को कस दो, ये ऑर्गेनाइज्ड भी है, इनको कोई समस्या भी नहीं है। इन्हीं से कैलेंस्टाइन मूवमेंट्स जो विदाउट गुड इनवॉइस की जो रिमूवल होते हैं, जो मार्केट इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना पड़ा है, आप वहीं पर कंट्रोल कर लो। आपका 70% रेवेन्यू यही 6% लोग जो हैं 90% रेवेन्यू बना देंगे आपका। और आप जो बाकी जो आपके जो 94%, 90%, 92% जो आपके जो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनको छोड़ दो ना, उनके लिए आप पॉलिसीज बनाते ही क्यों? आप इन 6% LLPs और लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए बनाओ जो कि ऑर्गेनाइज और सिस्टम्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं।
मैं हैरान हो रहा हूं कि ऐसी पॉलिसीज कि एक छोटे से छोटे टैक्स पेयर के लिए इतनी सारी पेनल्टीज, इतने सारे नुकसान, आप इन्फोर्समेंट के प्रोविजंस को कहीं से कहीं ले जा रहे हैं। तो मेरा विनती है कि ये थोड़ा ध्यान दिया जाए एडमिनिस्ट्रेटर्स को, और हमारे जो यहाँ लोग बैठे हैं प्लीज जहां जहां वो पहुंचा सकते हैं, मेरी विनती है पहुंचाइए। बहुत परेशानी है, बहुत ह्यू एंड क्राई है, हाहाकार मचा हुआ है। तो मैं यहाँ पर बस फॉर द कन्वीनियंस, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु हैव ज्वाइंड सब्जेक्ट फॉर अर्ली स्टेजेस, मैं बताना चाहूंगा कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है और इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है। दोस्तों, जब सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, जब लोकेशन ऑफ द सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होती है, जब लोकेशन ऑफ द सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होती है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट। मतलब मैंने सप्लाई की मिस्टर एक्स को जो कि दिल्ली में है, मैं कहा हूं, मैं भी दिल्ली में हूं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है दिल्ली है, इसका मतलब ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। लेकिन अगर मेरा रेसिपिएंट गुड़गांव में है, तो एज पर सेक्शन 12 इन केस ऑफ सर्विसेज ऑफ IGST ओनली, मेरा POS गुड़गांव बन जाता है अगर मेरे पास उसका एड्रेस मेरे रिकॉर्ड पे है। तो मेरा POS गुड़गांव बन जाता है, और मेरा POS गुड़गांव बनते ही ये लोकेशन ऑफ द सप्लायर दिल्ली हो जाता है और POS गुड़गांव हो जाता है, मतलब हरियाणा हो जाता है, दूसरे स्टेट में हो जाता है। तो इसे इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। इसको डिटरमाइन करना इसलिए भी अत्यंत आवश्यक है कि टाइप ऑफ टैक्स इस बात से निर्भर होता है कि आपकी ये नेचर ऑफ सप्लाई क्या है। नेचर ऑफ सप्लाई इस बात के लिए भी डिटरमाइन करना अत्यंत आवश्यक है कि क्या कोई सप्लाई एक्सपोर्ट सप्लाई हो सकती है, जीरो रेटेड कैटेगरी में आ सकती है। जीरो रेटेड कैटेगरी जब हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं, वहां डिटरमाइन करते हैं कि अगर कोई गुड्स आर टेकन आउटसाइड इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, then those shall be considered to be export of goods. Then the POS shall be the place where the goods are being taken. In that case, राजेंद्र जी, ये प्लेस ऑफ सप्लाई कल विनीत डिस्कस करेगा। आई एम सॉरी, इसको जो क्वेरीज हैं वो ले लेते हैं अभी, है जी। ठीक है सर, बस मैं इतना ही है, बस लास्ट एक सर्कुलर बताना चाहता हूं। और प्लीज, लास्ट सर्कुलर है सर जून 2018 का। Then my talk is completed here, sir. In case of SCZs, अभी एक जजमेंट भी आया गुजरात हाई कोर्ट का yesterday कि SCZ को अगर उनका ISD का क्रेडिट है तो रिफंड भी मिलेगा। In case of SCZ, सिचुएशन इज कि POS जो मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूं, बस इतना ज्यादा नहीं टच कर रहा POS को, कि केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज में POS वहां होता है जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है। इन्होंने ये बताया हमें इस सर्कुलर में कि SCZ जो हैं बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हम मानते हैं वो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। इस केस में अगर SCZ का कोई भी स्टाफ किसी भी आउटसाइड स्टेट जाकर किसी भी होटल में रुकता है, तो उस केस में वो होटल जो है SCZ की सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई मान सकता है। उसके लिए उन्होंने कहा कि it is an established principle of interpretation of statutes that in case of an apparent conflict between two provisions, the specific provision shall prevail over the general provision. General provision is in case of immovable properties, the POS shall be the location where the immovable property is situated, but the specific provision is that section 7 subsection 5 clause B, उसमें ये कहा गया है कि किसी भी SCZ को सप्लाई जो होगी उसे इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में जब होटल्स SCZ को सप्लाई करेंगे, उनके यहां वो आकर होटल्स में SCZ के लोग रुकेंगे, तो SCZ अगर रेसिपिएंट है तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई इसलिए माना जाएगा क्योंकि वो स्पेसिफिक 7(5)B है ओवर द जनरल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 subsection 4 of the in case of immovable property. So very this nice. was some, very this nice. Was something. जी sir. Very nice. Thank you so much for a great deliberation, for a great presentation.
the remarks are coming from the public that he has presented very well and he should be allotted some more time. But I am sure that you have already completed it. Place of supply we will discuss tomorrow. Now few questions have come, I think. So please close this PPT and we can have a full screen. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I am reading out the questions. We have received certain questions in the chat box. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Just the first question which we have received from Mr. Manish Garg. His question is how to raise self-invoice in case of manual books of accounts. Sir, there is no differentiation between manual or computerized books of accounts. What I understood from your query is, in case of manual books of accounts, your invoices are manually raised. Right. So you have to self-generate the invoice. So what you can do is, sir, for reverse charge, in case of reverse charge, you can generate a separate series for reverse charge. You can create a same format in the computer, and you can start a separate series, unique series of reverse charge invoices. So there is no question, there is no problem, sir, at all for that matter. Right. The next question is, as per Mr. Vikas Mittalji from Jamshedpur, vouchers are actionable claim. They fall under Schedule 3. So how can there be any time of supply for vouchers? In other words, when transaction is in providing voucher is not supply at all, then where is the question of determining time of supply? Sir, Vikasji, it is not necessarily always an actionable claim, vouchers. In every case, here I cannot deliberate upon actionable claims. That again itself a very lengthy subject to discuss about. But to my humble understanding, actionable claims are not, every vouchers would not fall into the category of actionable claim. And if they do not pass the test of actionable claim, come outside the preview of Schedule 3, then only the time of supply is being talked about by the statute. Yes, next. Next question is from Mr. Akhilesh Garg. This question, if supply is identifiable and tax is paid at the time of supply, but the voucher is never redeemed, how the tax will be reversed? सर अखिलेश जी हैं हमारे STBA के बड़े सीनियर मेंबर हैं अखिलेश गर्ग, आई बिलीव वही होंगे, है ना मदान साहब? हाँ जी, वही है। हाँ, तो मुश्किल सवाल है इनका, लेकिन मेरी समझ में यही आता है कि अगर आप सोचिए, if the invoice is raised for the supply of vouchers, if vouchers are never redeemed within the time allotted to issue a credit note for that matter under section 34, then of course you can always reverse it. This is my humble view. Akhilesh Bhaiya, if any other question, you can always ping me. We can discuss it separately. It's a difficult query. Otherwise, the opinion is that if it is forfeited, if time is lapsed, chance is gone. Tax has already gone. It cannot be reversed after that. Yes. Next. Yes, question. if time is lapsed, then there is no. There is no question of reverse. This is what he is saying. Supply is not met because time is gone. Yes, next. Sir, next question is from CA Satya Ahuja ji. His question is export of service is interstate service? If yes, whether 20 lakh threshold limit is applicable? Answer to both queries, yes. Answer to both queries, yes. Export of service shall be considered to be interstate supply, and certainly the exemption of threshold exemption of under section 22 of interstate supply of 20 lakhs shall certainly be available, sir. So, next question, it says if purchased goods, whatever purchased from unregistered supplier, then self-invoice would be generated and reverse charge is applicable in case of goods. So I'm not
In fact, the name is also not appearing in the query. It is PC1 appearing, so I'm not able to understand the query correctly. Hello, should I read it? What I understood is, in case of goods, there are only raw cotton, silk, used motor vehicles sold by the government. Some of those items under notification 4/17 are mentioned, CTR. If those goods are being procured by the recipient and the supplier is unregistered, then only the self-invoicing for those goods are required to be done, sir. And of course, for the construction activity, in case of developers, if they procure goods from unregistered suppliers, in case of cement and steel, I think, if I'm not mistaken, 80% of the supplies has to be procured from the registered supplier. If less than that, then the tax is required to be paid under reverse charge by the recipient, that is a property developer. Otherwise, in case of goods, no necessity of issuing, because otherwise 9(4) is just suspended. Yes. Next. So next query is from Mr. Surinder Kumarji. He has given an hypothetical situation. He said, H of Haryana ordered to D of Delhi to ship the goods to J of Delhi. That is, J is job worker and bill to H. All are registered under GST Act. Please query is related to place of supply. It will be discussed tomorrow, please. Right, perfect, sir. Next question is from Mr. Vikas. He's asking, in the case of purchase of service, which comes under RCM from a registered purchaser, should the supplier also mention GST in the invoice to enable the recipient to avail ITC against such supply? Yes, if a supplier is a registered supplier, then he has to mention GSTIN. No question of there is no option of not mentioning GSTIN in case a supplier is registered. Right. If he doesn't mention that, sir, Madan sir, you have anything? No problem. Please carry on. Yes, it is okay. Sir, I just read directly from the chat box. Next questions. Completed? Sir, there are a couple of questions. Let me. Sir, next question is from Mr. Sumit Garg. He is asking, payment not received within 6 months, but tax has been paid on the date of invoice. How do I reverse the tax in respect to goods or services? Sir, question is not related to time of supply, please. On ITC, when we will discuss ITC, at that point of time it may be taken. Next. One question is, what are the deductibles and non-deductibles tax codes? Deductibles and non-deductibles? Tax codes. It is in the chat box. Codes. So question is related to ITC. Right. There is no other question, sir. Thank you so much. Thank you so much. Full screen कर दीजिए, सारे लोग नजर नहीं आ रहे. Right, sir. अखिलेश जी नजर आ गए सबसे पहले. अखिलेश जी नजर आ गए हैं. नमस्कार सर. नमस्कार अखिलेश भाई. आपका मुश्किल क्वेश्चन है, कल डिस्कस करेंगे. सर, मेरी नॉलेज वीक है सर, इसलिए. हाँ, मैं इसीलिए तुम ऐसे क्वेश्चन रेज करते हो ना. इसीलिए हमको जो है मुंह बंद हो जाता है. एक्सीलेंट. बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा. वी विल थिंक ओवर एंड रिप्लाई टू यू, सर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. क्या हो गया भैया? फुल स्क्रीन लगाओ ना. सर, फुल स्क्रीन है सर. फुल स्क्रीन पे तो सिर्फ राजेंद्र जी आ रहे हैं. नहीं सब आ रहे हैं सर. लोग आ रहे हैं सर. आपके ऊपर सर उसमें एडजस्टमेंट है. तो देन गो अहेड. मदान साहब, राइट साइड पे ना एक टाइल्स का बॉक्स नजर आ रहा है. टाइल्स का बॉक्स राइट साइड पे ऊपर टाइल्स बनी हुई. अब उसको आप क्लिक कर दीजिए, सारे नजर आने शुरू. ओके, चलिए. क्या नाम है इसका? AK श्रीवास्तव जी, आगे चलाइए प्रोग्राम. सर, अब एक तो नेक्स्ट इज द कमेंट फ्रॉम द चेयरपर्सन. हाँ जी. एंड
जोशी साहब हैं कि चले गए? जोशी साहब कुछ देर पहले तो थे। जोशी साहब गए सर। चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो मैडम बांसल, मैडम को कहिए कंक्लूड कर देंगे। और उससे पहले बिफोर दैट, टुमारो द प्रोग्राम इज 11 AM to 1 PM, 11 to 1 tomorrow on place of supply. It's a very important subject, just like today's subject, place of supply in case of in domestic transaction as well as international transaction, in case of goods as well as in case of services. So members, please try to come by 11 o'clock positively, as well as with a better strength as we have. कल तो छुट्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जितने मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स कम से कम 2 मेंबर और साथ में लेके आए। ये मेरी पर्सनल उनसे रिक्वेस्ट है। जो उनके ऑफिस का स्टाफ है, कल उनकी भी छुट्टी है, तो उसको इस्तेमाल करिए और उनको कहिए कि उनको ये शेयर कर दीजिए लिंक, ताकि वो भी सवेरे ज्वाइन कर सके। लिंक यही रहेगा एक श्रीवास्तव जी, जो आज का लिंक यही है, सेम। Friends, this link will remain for tomorrow also. You can use the same link, but please advise your staff, at least 2 members from each office should come, so that tomorrow we have at least 300 members in the morning. So the topic will be very important, and Mr. Vinit Bhatia, he is a very great speaker, former president of the Delhi State Bar Association, advocate High Court. He speaks very well. He will explain you the things in a very nice manner. So all are requested to please join at 11 o'clock along with the staff members. Thank you. Yes, sir. I request Madam Bansal, the chairperson for today's session, to kindly give her the concluding remark on today's talk by Mr. Rajendra Arora. Excellent talk. I think the demand generally has been that, well, the talk should continue, but we have time constraint, and maybe we can, if these demands come, we may think of organizing another session sometime, whenever time permits. Let Madam Rajendra, thank you. Rajendra ji, you deserve compliments from all of us. It is a wonderful deliberation. You have touched each and every aspect minutely. Nothing has been left. आपने 2-3 बातें तो बहुत ही अच्छी बताई कि genesis of the invoice and genesis of the supply is the contract between the parties. Contract may be verbal, contract may be written, and therefore invoice has to be in accordance with the contract. दूसरा, आपने ये इतनी सिंपल बात बताई कि B2B ट्रांजैक्शन कौन सी है, B2C कौन सी है। जहाँ रिसिपिएंट आपको GSTIN देता है वो B2B है, जहाँ रिसिपिएंट नहीं देता है। मतलब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपने इतनी अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि ये बातें बिल्कुल दिमाग में ऐसे लिखी गई कि जो कोई कभी भूल नहीं सकता। आपने बहुत अच्छी तरह से माइन्यूटली सब एस्पेक्ट्स बताए। देखिए, कॉम्प्लेक्स तो है ही सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट है, अभी बहुत ज्यादा किसी ने डेलिब्रेट नहीं किया, हालांकि रोज डेलिब्रेशन इस पे आती है, पर कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा एज एंड व्हेन वी विल गो डीप इनटू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, क्रॉप अप होंगी प्रॉब्लम्स, और जब केस लॉ आएगा तब कुछ सेटल डाउन होएगा। पर फिर भी आपने बहुत अच्छी तरह, और शायद आपको 1-8 घंटा और भी दिया जाता तो आप इस पे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते। आपने इसमें मेरे कहने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। जिसने आपके डेलिब्रेशन की तरह सुना, उनको सब कुछ क्लियर हो गया है। सो मेरे को आपने 70 पे कहा था, पर वो 70 पे भी इतना ज्यादा कुछ कहने को है कि मैं 2-4 लाइन में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यदि मेरे को कभी थोड़ा 10-15 मिनट का टाइम भी देंगे तो मैं उस पर एक्सप्लेन कर दूंगी कि सेक्शन 70 का इम्पैक्ट क्या है, उसमें क्या करना चाहिए, समन्स को डिफेंड करना चाहिए, ट्रूथफुल फैक्ट्स बताने चाहिए, वेदर दैट इज एडमिसिबल इन एविडेंस। पर अभी वो अपने सब्जेक्ट से बाहर हो जाएगा और मेरे को मदान तुरंत क्वेश्चन कर देंगे। एनटीसी में आपकी ये बात हम एनटीसी में सुनेंगे मैडम। वही तो मैं कह रही हूँ, मदान साहब मुझे क्वेश्चन कर देंगे 1 मिनट में, तो इसीलिए मैं इस पे नहीं बता। थैंक यू सो मच।
Thank Thank you you. so much, madam. You have concluded very nicely. और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई को बहुत ही आसान सब्जेक्ट माना जाता है और ये समझा जाता है ये पढ़ने की क्या जरूरत है टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई में राजेंद्र ने बताया कि भैया आप अगर सर्विसेज की सप्लाई है तब तो आप उसकी पेमेंट को थोड़ा डेफर कर सकते हो 30 दिन में इनवॉइस बना के, अदरवाइज तो कहीं कोई चांस ही नहीं है। और अगर आपने टाइम पर टैक्स पे नहीं किया एज पर टाइम ऑफ सप्लाई तो असेसी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना 18% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बहुत भारी है असेसी के लिए, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई अंडरस्टैंड करते हुए इस चीज को बहुत ही ध्यान से पढ़े। प्लीज रिक्वेस्ट समबडी टू से वोट ऑफ थैंक्स टू एवरीबडी। Vishal Sharma. Sir, he is there. Vishal is there. Vishal, can you take up the vote of thanks? Good evening, Ji. Vishal is there. Good evening to everyone. Good evening. Today I have given the opportunity to offer vote of thanks on behalf of all member of the AFTP. I am very heartily gratitude to Speaker Shri Rajinder Arora ji for sharing his knowledge with us. As our respected Ma'am Premlata Bansal has said that where there is a supply, there is a GST. No doubt, मेरे से पहले जो स्पीकर सब थैंक्स करके गए हैं श्री राजेंद्र अरोड़ा जी का, हमारे रिस्पेक्टेड बड़ी खुशी हुई मदान अंकल को देख के। मदान साहब, गुड इवनिंग टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री संजय शर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं। श्री राजेंद्र अरोड़ा जी ने जिस हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई हम लोगों को समझाया, लोगों की डिमांड बहुत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीवास्तव सर से कि इनका एक बार और लेक्चर हमें रखना चाहिए, लोगों को ये नॉलेज आ सके। थैंक यू वेरी मच श्रीवास्तव साहब, डीके गांधी जी, श्री BR कौशल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, एवरीबॉडी जिसने आज हमारे पार्ट लिया है। आई ऑन बिहाफ ऑफ द AFTP, thank you very much. Thank you, Arora sir. Thank you very much. I also like to thank sir. Just a second, sir. Madan sir, Please. I also like to thank Madan sir for having posed his faith on me, in spite of having a galaxy of speakers at his disposal. But he is fantastically. Of course, I would say it is a blissful thing. I would like to thank Premlata ma'am. I think she's back now. Thank you, ma'am, for all your kind words. I am like your son, and your fan also. I don't know whether I deserve it or not, but yes, thank you very much. Sanjay sir is he's been yes, he's here. He has always been a fantastic supporter, motivator, and an elder brother, a guide. Srivastava sir, thank you very much for again having faith in me, along with Madan Sahab and all the other AFTP members and all the participants who have given their patient listening. I am just a student of this subject. I am actually learning the subject. Please bless me for this thing. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. राजेंद्र जी, आज आपको थैंक्स करने दो आपका। आज तो गुरु दक्षिणा राजेंद्र जी आप सबके गुरु हैं। आज गुरु का डे और आज गुरु दक्षिणा इनको मिलनी चाहिए। So thank you all. आप आशीर्वाद दे दे, मेरा गुरु दक्षिणा मेरी। We'll see you. बिल्कुल। राजेंद्र जी, कल आप स्पीकर नहीं है, लेकिन कल आपको एज ए पार्टिसिपेंट ज्वाइन करना है 11 आप यू मस्ट ज्वाइन along with at least 5 of your juniors. Sir, I will forward it to around 7,000 people. Don't worry, sir. नहीं फॉरवर्ड करना अलग चीज है, जरा 5 बच्चों को मैं इंश्योर करूंगा कि 10 लोग ज्वाइन करें। Thank you. I request all to please come with the staff. Thank you. Thank you. Thank you, Madan sahab. Thank you. Thank you everyone. मदान साहब, well done. Thank you जी, thank you. नमस्ते मैडम जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। नमस्कार मैडम। बंसल जी को मेरी नमस्ते कहिएगा। बत्रा साहब थैंक यू सो मच, भाटिया साहब थैंक यू सो मच, नीतिका खन्ना सो मच, अखिलेश गर्ग भाई एंड ऑल मेंबर्स, एवरीवन। सभी को थैंक यू जी। मनोज जी से, सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, मनोज जी काफी इंटरेक्ट कर रहे थे। वी मस्ट इनके भी कभी हमें व्यू लेने चाहिए। हाँ करिए ना। मनोज जी के, मनोज GST साथी, इनको भी he should also have his views sometime. Sure. Right. Thank you. Thank you so much. Good night. Closing call, sir. Right.
Good night, everybody. Good night. Thank you. And see you tomorrow.